Very good morning, students. We are again with our literature section in 10th class. As you know that up to now we have covered or completed two chapters from Footprints Without Feet. Right now it's time to start chapter number 5th. The name of the chapter and the name of the book is just same. The name of the book is Footprints Without Feet and the name of the chapter number 5 is Footprints Without Feet. Is it clear? And we'll have chapter number 5th, Footprints Without Feet. The reason behind that, the chapter number 3 and chapter number 4 basically have been deleted by the CBSE. Is it clear? Chapter number 3 and 4 will not be asked, okay, in any case in board examination at all. So not to worry about it at all. Is it clear, students? So let's say chapter number 5, Footprints Without Feet by H.G. Wells. So Footprints Without Feet. This excerpt or this story has been taken from the novel written by H.G. Wells, and H.G. Wells is the writer of the same chapter, Footprints Without Feet. So this story or this excerpt has been taken from H.G. Wells novels, and the name of the novel says The Invisible Man. The Invisible Man, and this story revolves around or centers around the brilliant scientist named Griffin. Is it clear? And this story or this accident also tells us about then how he had discovered to make himself invisible, and he also misused his theory, his discovery. Is it clear? So let's say with chapter Footprints Without Feet by H.G. Wells. Let's review line without wasting your time. Okay, the story that revolves around the great scientist Griffin. Will have the line of the chapter. Chapter number 5th, as you know that, I repeat that again, chapter number 3rd and 4th have been deleted by the CBSE, and they say will not be asked in the board examination at all. We are having the story, or chapter Footprints Without Feet by H.G. Wells. Let's review line, students. Footprints Without Feet, chapter number 5th. Chapter number 5th. Can a man become invisible? क्या एक व्यक्ति, एक आदमी जो है अदृश्य बन सकता है क्या? Can a man become invisible? क्या एक व्यक्ति जो अदृश्य बन सकता है क्या? This is the story of a scientist. ये कहानी एक वैज्ञानिक की. Can a man become invisible? क्या एक व्यक्ति या आदमी जो है invisible बन सकता है क्या? अदृश्य बन सकता है क्या? क्या एक व्यक्ति या आदमी जो है गायब हो सकता है क्या? This is the story of a scientist. ये कहानी है एक वैज्ञानिक की. ये कहानी एक वैज्ञानिक की. Who discovers how to make himself invisible, जो इस बात की खोज करता है कि स्वयं को किस प्रकार से अदृश्य बनाया जाता है. Does he use or misuse his discovery? क्या वह अपनी डिस्कवरी का, अपनी खोज का यूज करता है या फिर मिसयूज करता है? Is it clear? I repeat the line again for all of you. Can a man become invisible? क्या एक व्यक्ति या एक आदमी जो है अदृश्य बन सकता है क्या? This is the story of a scientist. एक कहानी है वैज्ञानिक की. वो discovers how to make himself invisible, जो इस बात की डिस्कवरी करता है किस प्रकार से स्वयं को जो अदृश्य बनाया जाता है, गायब किया जाता है. Does he use or misuse his discovery? क्या वह अपनी डिस्कवरी का, अपनी खोज का यूज करता है या फिर मिसयूज करता है? So let's say the chapter is all about the introduction. Okay, the same we had just before these lines. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. The two boys started in surprise. दो लड़के जो हैं आश्चर्यचकित होते हैं at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. दो नंगे पाँव के ताज़ा मिट्टी में सने हुए निशानों को देख करके. दो नंगे पाँव के ताज़ा मिट्टी में सने हुए, गारे में सने हुए, कीचड़ में सने हुए निशानों को देख के दो लड़के बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, आश्चर्यचकित हुए थे. What was a barefoot man doing on the steps of a house? वह नंगे पाँव वाला व्यक्ति जो है steps of a house, घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? वह नंगे पाँव वाला व्यक्ति जिसके पाँव के निशान कीचड़ में सने हुए दिखाई दिए थे, वह नंगे पाँव वाला व्यक्ति उस घर की सीढ़ी पर क्या कर रहा था? What was a barefooted man doing on the steps of a house? और वह नंगे पाँव वाला व्यक्ति जो है घर की सीढ़ियों पर कर क्या रहा था? कहाँ पर? In the middle of the London, in the middle of London, लंदन के बिल्कुल बीच में. And where was the man? और आदमी कहाँ पर था? Because the imprints were there, but the man was not there. आदमी वहाँ पर नहीं था. But the where was the man? वह आदमी कहाँ पर था? निशान तो थे पैरों के, लेकिन आदमी कहाँ पर था? तो लड़के जो हैं लंदन के बीच उन निशानों को देख के बड़े सरप्राइज हुए थे. As the gaze और जैसे लड़कों ने घूरा था, a remarkable sight met their eyes. एक असाधारण दृश्य उनकी आंखों के सामने आया.
और जैसे ही लड़कों ने उन निशानों को घूरा था, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, एक असाधारण दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, अ फ्रेश फुटमार्क, ताज़ा ताज़ा फुटमार्क, पैरों के निशान, अपीयर फ्रॉम नोवेयर, न जाने कहाँ से प्रतीत दिखाई दिए थे। ताज़ा ताज़ा जो है, फ्रेश जो है फुटमार्क्स, पैरों के निशान जो है न जाने कहाँ से दिखाई दिए थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और आगे जो है फुटप्रिंट्स फॉलोड, और जो आगे जो है फुटप्रिंट्स फॉलोड, एक के बाद एक जो निशान नज़र आते हैं, मतलब एक के पीछे एक जो है फुटप्रिंट्स जो है दिखाई देते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। कैसे? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। डिसेंडिंग मीन्स नीचे आना, असेंडिंग मीन्स ऊपर जाना। द मीनिंग ऑफ डिसेंडिंग इज नीचे आना, असेंडिंग इज ऊपर जाना। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और वो निशान जो है सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वहाँ नीचे आगे गली में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, लड़कों ने जो है फैसिनेटेड, सम्मोहित होते, मनमोहित होते हुए जो है उनका पीछा किया, निशानों का पीछा किया। अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकेम फेंट, और तब तक किया जब तक कि जो मडी इंप्रेशन है, जो कीचड़ में सने हुए जो इंप्रेशन है, छाप है, निशान है, वो फेंट धूमिल नहीं हो गई या कम नज़र नहीं आने लगी। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और आखिर में एक साथ जब तक वो गायब नहीं हो गए निशान, तब तक लड़कों ने निशानों का पीछा किया, फुटप्रिंट्स का पीछा किया, फॉलोड किया। The explanation of the mystery was really simple enough. The explanation of the mystery was really simple enough. इस रहस्य का जो explanation है, इस mystery की जो explanation है, was really simple enough, बहुत ही साधारण, बड़ी सामान्य से थी। इस mystery का, इस रहस्य का जो explanation था, was really simple enough, बहुत ही सामान्य, बड़े साधारण सा था। The bewildered boys had been following a scientist. इस mystery के पीछे exactly reason क्या था? और वो रीज़न ये था, जो बिविल्डर्ड बॉय थे एग्जैक्टली, जो घबराए हुए भौचक के लड़के थे। बिविल्डर्ड मीन्स घबराना या भौचक कर रहना। द बिविल्डर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, दरअसल वो घबराए हुए लड़के जो हैं एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। वो हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी हाल ही में इस बात की खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है, मनुष्य के शरीर को किस प्रकार से दृश्य बनाया जाता है, इस बात की उसने खोज की थी, उस वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। Griffin, I told you that this story revolves around the brilliant scientist named Griffin. I told you that before. Griffin the scientist, Griffin एक वैज्ञानिक है, had carried out experiment after experiment. उसने experiment after experiment, एक के बाद एक experiment किए थे। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment, उसने एक के बाद एक जो है experiment किए थे। To prove that the human body could become invisible, इस बात को प्रूव करने के लिए कि मानव शरीर को जो है अदृश्य बनाया जा सकता था। Finally he swallowed certain rare drugs. और अंत में जो उसने कुछ certain rare drugs, कुछ दुर्लभ जो दवाइयों को, मेडिसिन्स को, ड्रग्स को swallowed निगल लिया था। Okay, and his body became as transparent as a sheet of glass, और उसकी बॉडी जो है as a sheet of glass, एक कांच की शीट की तरह, जिस तरह से कांच का ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट होता है, उसी तरह से उसका शरीर जो है शीट ऑफ ग्लास, कांच की शीट की तरह ट्रांसपेरेंट बन गया था, पारदर्शी बन गया था। Though it also remained as solid as glass, हालांकि जो ग्लास था वो सॉलिड था। क्या था? सॉलिड था। सपोज टू बी दिस इज अ मैन, सपोज करें मैन यहाँ पर है, ओके ये मैन है। अब इफ द मैन बिकम्स इनविजिबल, अगर मैन इनविजिबल बन जाता है तो दिखाई तो नहीं देगा मैन आपको यहाँ पर, लेकिन टच जब करोगे तो वो मैन आपको नज़र फील होगा कि देयर इज़ अ सॉलिड बॉडी है। एग्जैक्टली इनविजिबल होने के बाद भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था उस डिस्कवरी का कि अगर उस बॉडी के कोई गलती से हाथ लगा ले, मान लो गलती से लग जाए, तो वो फील होगा यहाँ पर कोई आसपास है, ओके या कोई पर्सन यहाँ पर, डेफिनेटली कोई ऐसा लिविंग बॉडी यहाँ पर है, ओके। So let's have, though it also remained as solid as glass, यद्यपि वह सॉलिड रहा, एक मजबूत पत्थर की तरह रहा, ग्लास की तरह रहा, मतलब एक सॉलिड एज अ शीट ऑफ ग्लास रहा, ओके। Though it also remained as solid as glass, हालांकि वह एक ग्लास की तरह सॉलिड भी रहा, ट्रांसपेरेंट तो रहा शीट ऑफ ग्लास की तरह, लेकिन ग्लास की तरह वह सॉलिड भी रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट though he was, वह काफ़ी बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट though he was, यद्यपि वह काफ़ी एक वैज्ञानिक जो था, काफ़ी ब्रिलियंट, काफ़ी होनहार था। ग्रिफिन was rather a lawless person, यद्यपि वह काफ़ी होनहार था लेकिन वह लॉलेस भी था, कानून की अवज्ञा करने वाला था, कानून का पालन नहीं करने वाला भी था। लॉलेस था मतलब एक लॉफुल होता है, एक लॉलेस है, लॉलेस था मतलब कानून को मानने वाला नहीं था, लॉलेस पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उसके लैंडलॉर्ड ने उसे नापसंद किया था, उसका लैंडलॉर्ड जो उसे पसंद नहीं करता था।
एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे इजेक्ट करने की उसने कोशिश की। उसके लैंडलॉर्ड ने, उसके मालिक ने, मतलब वो रेंट पे रहता था, उसके लैंडलॉर्ड ने उसे पसंद नहीं किया था और उसे इजेक्ट करने की कोशिश की थी, उसे बेदखल करने की कोशिश की थी, घर से निकालने की कोशिश की थी। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, घर में ही आग लगा दी। बदले में ग्रिफिन ने जो घर में आग लगा दी थी, अपने लैंडलॉर्ड के घर में, जिस घर में वह किराए पर रहता था, उस घर में उसने आग लगा दी थी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी के देखे वहाँ से जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े थे, और बिना किसी के देखे वहाँ से जाने के लिए उसने अपने कपड़े उतारने पड़े थे। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी के देखे, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे वहाँ जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े जो उतारने पड़े थे। Thus it was that he became a homeless wanderer. Thus it was that he became a homeless wanderer, और इस तरह से वह एक होमलेस वैंडरर, एक बेघर व्यक्ति बन गया था। वैंडर मीन्स घुमक्कड़ी करने वाला, घूमने वाला, और होमलेस में इसका घर नहीं होता, वह ऐसा व्यक्ति बन गया था। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और अदृश्य। और कैसा अदृश्य? Until he happened to step in some mud, और तब तक अदृश्य रहा जब तक कि उसके पाँव जो हैं, until he happened to step in some mud, जब तक कि उसके स्टेप, कदम या पाँव जो है मड में नहीं पड़ गए, कीचड़ में नहीं पड़ गए, मिट्टी में नहीं पड़ गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, और जैसे वो चला उसके फुटप्रिंट्स पीछे नहीं दिखाई देने लगे, पीछे नहीं दिखाई दिए, तब तक वह अदृश्य रहा, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के। जब तक कि मिट्टी में पाँव नहीं सन गए, पाँव नहीं आ गए और उसके फुटप्रिंट्स नज़र नहीं आए, तब तक वह अदृश्य ही रहा। He escaped easily enough from the boys, और वह आसानी से जो है, आसानी से लड़कों से बच के भाग गया। वो followed his footprints in London, जिन लड़कों ने लंदन में उसके फुटप्रिंट्स का पीछा किया था। He escaped easily enough from the boys, और वह आसानी से जो है बॉयज़ से आसानी से बच के निकल गया था। वो फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जिन लड़कों ने जो है उसके फुटप्रिंट्स का, उसके फुट के प्रिंट्स का, उसके पैरों के निशानों का जो है पीछा किया था। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स अवर, बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स अवर, एंड वर बाय नो मीन्स अवर का मतलब होता है ख़त्म होने वाले नहीं थे, रुकने वाले नहीं थे। लेकिन उसके एडवेंचर जो है ख़त्म होने वाले नहीं थे, उसके साहसिक कार्य जो है ख़त्म होने वाले नहीं थे, मुझे और भी कुछ करना था। He had chosen a bad time of the year, और उसने साल का बहुत ही बुरा समय चूज किया था घर से बाहर जाने का, गायब होकर घर से बाहर निकलने का। उसने साल का बहुत ही बुरा समय जो है चयन किया था, साल के बहुत ही बुरे समय का, बहुत ठंडी समय। To wander about London without clothes, लंदन में वेंडर करने के लिए, बिना कपड़ों के, without clothes, लंदन में यहाँ वहाँ घूमने के लिए उसने साल का बहुत ही बुरा समय चूज किया था। It was midwinter, समय था सर्दी के मध्य का, सर्दी का मौसम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ही कड़ाके की ठंड वाली थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी, बिटरली कोल्ड थी, कड़कड़ा देने वाली थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह बिना वस्त्रों के, बिना कपड़ों के कुछ भी नहीं कर सकता था। एंड ही कुड डू नथिंग विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़ों के जो है कुछ भी नहीं कर सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, और इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, इंस्टीड का मतलब होता है के सिवाय के बजाय। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में यहाँ वहाँ चलने के बजाय, he decided to sleep into a big London store for warmth. Okay, instead of walking about the street, गलियों में about यहाँ वहाँ घूमने के बजाय, he decided to sleep into a big sleep, not sleep. Okay, sleep. He decided to sleep में जाना. He decided to sleep into a big London store for warmth. उसने big London store for warmth, लंदन के बहुत ही बड़े स्टोर में, एक बहुत ही बड़ी दुकान में warmth के लिए अपने आप को गर्म करने के लिए जाने का निर्णय लिया। मतलब गलियों में यहाँ वहाँ ठंड में घूमने से बजाय उसने एक बहुत ही बड़े लंदन के स्टोर में जाने का निर्णय लिया। Closing time arrived. दुकान को जो है बंद करने का समय आ गया था, स्टोर को बंद करने का समय आ गया था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे दरवाजे बंद हुए थे, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, ग्रिफिन जो है सक्षम था अपने आप को आनंद देने में। दरवाज़ा बंद होने से पहले, डोर क्लोज होने से पहले दरवाजे के अंदर वह चला गया था, और वह सक्षम हुआ अपने आप को आनंद देने में, आनंद प्रदान करने की चीज़ का, ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को वस्त्रों का और फीडिंग खाना खिलाने का आनंद देने में वह कामयाब रहा। मतलब उसने वस्त्र पहने और खाना खाए। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना एक्सपेंस का रिगार्ड किए, बिना खर्चे की परवाह किए।
He broke open boxes. He broke open boxes. उसने boxes खोले. उसने क्या खोले? Boxes खोले. And wrappers और wrappers खोले. क्या खोले? Wrappers. Wrappers like फूड के रैपर्स हैं, मील के रैपर्स हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, रैपर्स खोले. मे बी लेट्स द स्टोरी. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस. उसने बॉक्सेस खोले. एंड रैपर्स और रैपर्स खोले. एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स. और क्या निकाले? कपड़े निकाले. एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स. और उसने जो है अपने आप को फिट कर लिया, मतलब पहन लिए गरम गरम कपड़े. Soon with shoes. और बहुत जल्दी उसने शूज़ पहने. एंड आवर कोट एंड वाइड ब्रिम हैट पहना. और एक आवर कोट पहना, एक पूरा कोट पहना. एंड वाइड ब्रिम हैट का मतलब होता है चौड़ी किनारे वाली पट्टी जो होती है टोपी की. टोपी गोल राउंड में होती है, इसकी चौड़ी पट्टी होती है बाहर से. और चौड़ी किनारे वाली पट्टी वाली जो हैट है उसने वो पहनी. ही बिकेम अ फुली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन. वो फुली ड्रेस पर्सन बन गया. क्या बन गया? फुली ड्रेस. पूरे वस्त्र पहने, एक विजिबल मैन, दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया. ध्यान रखना, सर पे टोपी है, नीचे कपड़े हैं, यहाँ फेस में सब कुछ इनविजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिखाई दे रहा है. हवा में टोपी है. ओके अभी उसने कपड़े पहन तो लिए गर्म करने के लिए अपने आप को, लेकिन अगर वो इस पोजीशन में घर से बाहर निकलता है, इफ़ ही वेंट घर से स्टोर से बाहर निकल, इफ़ ही वेंट आउट इन दिस पोजीशन और इन दिस सिचुएशन फ्रॉम द स्टोर और शॉप, ही विल बी आइडेंटिफाइड. उसे पहचान लिया जाएगा. ओके तो यहाँ पर लिखा है soon with shoes and our coat and a wide brimmed hat he became a fully dressed and visible person in the kitchen of the restaurant. और रेस्टोरेंट के किचन में, तो मतलब जिसमें एंटर किया उसने वहाँ पे सारा सामान उसे मिल रहा है. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट. और रेस्टोरेंट के किचन में, उस रेस्टोरेंट के किचन में, रेस्टोरेंट लाइक एक होता है होटल, एक होटल भी है, एक रेस्टोरेंट. होटल में खाना खा लो, रेस्टोरेंट में रेस्ट भी आप कर सकते हैं बेसिकली. ओके इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. उसे वहाँ पे कोल्ड मीट मिला. क्या मिला उसे वहाँ पे? कोल्ड मीट मिला, ठंडा मीट मिला. एंड कॉफ़ी और कॉफ़ी मिली. एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर. एंड ही फॉलोड अप द मील. और उसने अपने खाने को आगे बढ़ाया. उसे कॉफ़ी मिली और कोल्ड मीट तो मिला, कोल्ड मीट मिला, फ्लैश मिला, मीट मिला. एंड ही फॉलोड अप द मील. और उसने अपने खाने को आगे बढ़ाया विद स्वीट्स. किसके साथ? मिठाइयों के साथ. एंड वाइन और शराब के साथ. वह वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर. जो उसने कहाँ से ली थी? ग्रॉसरी स्टोर से ली थी, पंसारे की दुकान से ली थी. अब कहोगे सर वाइन तो वाइन शॉप पे मिलती है, ग्रॉसरी स्टोर पे कैसे मिलेगी? एक्चुअली इन वेस्टर्न नेशन और इन फॉरेन कंट्रीज वाइन्स एंड बियर्स आर आल्सो अवेलेबल एट द ग्रॉसरी स्टोर. ग्रॉसरी स्टोर्स पे वाइन अवेलेबल रहती है, बियर अवेलेबल रहती है. दे हैव देयर काइंड ऑफ अरेंजमेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके दे हैव. सो ग्रॉसरी स्टोर से मिला. फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स. फाइनली ही सेटल्ड डाउन. और आखिर में उसने विश्राम किया. किस चीज़ के ऊपर? टू स्लीप, सोने के लिए. ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स. क्विल्स का मतलब होता है रज़ाइयाँ, कंबले, रज़ाइयाँ. और पाइल का मतलब होता है ढेर. तो आखिर में वह जो रेस्ट करने के लिए लेटा कहाँ पर? रज़ाइयों के ढेर के ऊपर उसने विश्राम किया. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप. और आखिर में वह सेटल डाउन हुआ, उसने विश्राम किया, स्लीप, निद्रा लेने के लिए. कहाँ पर? रज़ाइयों के ढेर के ऊपर. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम. अगर ग्रिफिन जो है केवल मात्र सही समय पर उठने का प्रबंधन कर लेता, मतलब अगर ग्रिफिन सही समय पे मॉर्निंग में उठ जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल. शायद सब कुछ सही होता. ऑल माइट हैव बीन वेल, कि शायद सब कुछ सही होता. माइट एक्चुअली इज अ मॉडल auxiliary verb which proceeds with first form of the verb in active sentences. And might here basically denotes remote possibility. Remote possibility यहाँ पर है, because might, if we speaks about possibility, might always proceeds with remote possibility. If there is a possibility that comes in may model, if there is a strong possibility, then the same comes in must. If there is a might possibility, the same comes in might. Okay, remote possibility, the same comes in might. So all might have been well. अगर वह सही समय पर उठ पाता तो शायद सब कुछ ठीक होता. As it was, जैसा कि था. He did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और वह तब तक नहीं उठा जब तक कि assistants, जो सहायक कर्मचारी है, अगली सुबह पहले से नहीं आ गए. उसके उठने से पहले नहीं आ गए, तब तक वह उठा ही नहीं.
When he saw couple of them, और जब उसने दो लोगों को आते हुए देखा तो उसने क्या किया? couple of them, approaching का मतलब पहुंचना, और जब उसने दो लोगों को अपने पास आते हुए देखा, he panicked, वह पैनिक्ड हो गया, वह घबरा गया, and began to run, और उसने दौड़ना शुरू किया। और जब दो लोगों को उसने अपने पास आते हुए देखा तो वह घबरा गया और उसने दौड़ना शुरू किया। Then naturally gave chase, और स्वाभाविक रूप से उसका gave chase पीछा किया गया, naturally स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया गया। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. In the end, और आखिर में, he was able to escape, वह भागने में सक्षम हुआ, only by quickly taking off his newly found clothes, only by quickly, तीव्रता से, फुर्ती से, taking off his newly found clothes, अपने नए नए मिले वस्त्रों को taking off, खोल करके भागने में वह सक्षम हुआ। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. So once more he found himself invisible, naked in the chill January air. एक बार फिर से उसने अपने आप को naked पाया, एक बार फिर से उसने अपने आप को invisible पाया, अदृश्य पाया, लेकिन जनवरी के chill air में, जनवरी की ठंडी हवा में। This time he decided to try the stock of a theatrical company. This time he decided to try the stock of a theatrical company, और इस बार जो उसने theatrical company, नाटक मंच में काम आने वाले जो वस्त्र होते हैं उस कंपनी के कपड़ों को ट्राई करने का निर्णय लिया। This time he decided to try the stock of a theatrical company, और इस बार उसने theatrical company के स्टॉक को जो है ट्राई करने का निर्णय लिया, in the hope of finding not only clothes, इस आशा के साथ कि उसे ना केवल कपड़े मिलेंगे but also something, कुछ ऐसा मिलेगा, something that would hide the empty space about his shoulders, जो उसके shoulders के ऊपर जो empty space है उसके neck और उसके face का, उसको भी हाइड, उसको भी छिपा देगा, ढक देगा, उसे ऐसा कुछ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ उसने थिएट्रिकल कंपनी के वस्त्रों को ट्राई किया। ओके, इस उम्मीद के साथ समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउट हिज शोल्डर्स, कुछ ऐसा उसे मिलेगा। नाटक कंपनी में बहुत सी चीज़ें, नकली नाक होते हैं, नकली दाढ़ी वगैरह होती है, नकली फेस भी होता है, उसे ऐसा कुछ वहाँ मिलेगा। तो शोल्डर के ऊपर जो एम्प्टी हिस्सा उसका है, ऊपर कैप पहनेगा, लेकिन फेस, फोरहेड एंड नेक कैसे हाइड किया जाए, उसे वहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, कांपना, ऑब्वियसली कांपना। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए। ही हरीड टू ड्रूरी लैंड, ही हरीड टू ड्रूरी लैंड, और ठंड से कांपते हुए वो ड्रूरी लेन की तरफ गया। इज द नेम ऑफ प्लेस, is the name of place like Vaishali Nagar, Vidyanagar, like Udaipuriya Mode, like we have, okay? So shivering with cold, he hurried, not hurried है, shivering with cold, he hurried to Drury Lane, और वह ठंड से कांपता हुआ, बिना कपड़ों के, जो पता है आप सभी को, विदाउट क्लोथ्स है, वो क्लोथ्स है, ठंड से कांपता हुआ जो वो ड्रूरी लेन की तरफ गया। इज द नेम ऑफ प्लेस, वहाँ पे वो एक्चुअली है क्या ड्रूरी लेन? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, रंगमंच के संसार का केंद्र है, रंगमंच के संसार का केंद्र है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, द फिरोजाबाद, बेसिकली दैट द फिरोजाबाद इंडिया इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। द सेम वी हैव लाइक, फॉर एग्जाम्पल, आई गेव यू एग्जाम्पल, लाइक फिरोजाबाद वी हैव द सेम प्लेस इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है इंडिया में। और इस तरह से लंदन में यहाँ पर एक जगह है ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि रंगमंच के संसार का जो है केंद्र, यहाँ पर रंगमंच के संसार की वस्तुएं, साजो सामान यहाँ पर मिलते हैं। He soon found a suitable shop, उसे बहुत जल्दी वहाँ पर एक सुटेबल शॉप मिल गया, उसे बहुत जल्दी वहाँ पर एक उपयुक्त दुकान मिल गई, उसे एक ऐसी दुकान जो उसके लिए क्या थी, सुटेबल थी। He made his way, उसने अपने रास्ते को नापा, मतलब अपने मार्ग पर गया, इनविजिबल, अदृश्य होता हुआ। अपस्टेयर्स का मतलब अपस्टेयर्स मतलब असेंडिंग होता हुआ, वह सीढ़ियों से ऊपर गया। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद में बाहर आया। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, कैसे बाहर आया? वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड, अपने माथे के ऊपर बैंडेज लगा के आया, पट्टियाँ बांध के आया। थोड़ी देर बाद में वहाँ से बाहर आया, अपने फोरहेड, अपने ललाट पर, अपने माथे पर पट्टियाँ बांध के आया। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहन के आया। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा के आया। आई टोल्ड यू बिफोर दैट Talese decided to go in a theatrical company which was situated at Drury Lane, or a shop, we can say that. तो वह नकली नाक लगा के आया, फॉल्स नोज, बिग बशी साइड विस्कर्स,
बिग बशी साइड विस्कर्स। बशी साइड विस्कर्स का मतलब होता है साइड विस्कर्स। विस्कर्स होते हैं मूछे, लेकिन साइड विस्कर्स मीन्स इसे कहते हैं गल मुच्छे, जो गाल पे मुच्छे होती है, जिसमें दाढ़ी कह सकते हैं हम लोग। तो वह बिग बशी साइड विस्कर्स, साइड में लगाने वाली जो विस्कर्स है, जो बशी है, काफ़ी घनी घनी जो है मूछे लगा के आया, गलमुच्छे लगा के आया, एंड अ लार्ज हैट, और बड़ी सी टोपी पहन कर आया। ओके, सो दैट ही कैन और इट कुड बी लुक लाइक एन अ विजिबल मैन, अ विजिबल पर्सन। ओके, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे जाने के लिए, बिना किसी के देखे वहाँ जाने के लिए, ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर। अब जिस शॉप में उसने एंटर किया था तो वहाँ से सारे कपड़े वो पहन के आया, नकली फॉल्स नोज़ है, बिग साइड विस्कर्स वगैरह विस्कर्स लगा के आया, हैट पहन के आया। अब बिना किसी के देखे वहाँ से जाने के लिए क्या किया उसने? ही carelessly attacked the shopkeeper from behind. He carelessly attacked the shopkeeper from behind. उसने behind पीछे से shopkeeper को carelessly बड़े बेदर्दी से, बड़े बेढंगे तरीके से, बड़े बेदर्दी से अटैक किया, आक्रमण किया उसके ऊपर। ओके, after which he robbed him of all the money he could find. After him, और इसके बाद he robbed him of all the money, उसने उसे लूट लिया, उसके सारे पैसे लूट लिए। he could find, जो पैसे उसे वहाँ पर उसे मिल सकते थे, मतलब जो पैसे उसे वहाँ पर मिले, उसने उस व्यक्ति के पैसों को लूट लिया था। मतलब though the Griffin was a brilliant scientist, but he was a lawless person too. वह एक lawless person भी था, कानून की अवज्ञा करने वाला भी था। Eager to get away from crowded London, और crowded London से दूर जाने की उत्सुकता लिए। ईगर का मतलब होता है उत्सुकता, इच्छा। Eager to get away from crowded London, भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाने की उत्सुकता लिए। He took a train to the village of Iping, उसने एक ट्रेन पकड़ी आइपिंग नामक विलेज में जाने के लिए। ओके, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाने के लिए, जाने की इच्छा लिए, उत्सुकता लिए, मतलब लंदन में बहुत भीड़ वहाँ पर थी, तो वहाँ पे कैसे रह पाता ग्रिफिन, तो उसने क्या किया? ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाने के लिए उसकी उत्सुकता लिए। ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग नामक गाँव में जाने के लिए उसने क्या पकड़ी? एक ट्रेन पकड़ी। आइपिंग नामक गाँव में जाने के लिए उसने एक ट्रेन पकड़ी। Where he booked 2 rooms at the local inn, जहाँ पर उसने लोकल इनन पर आइपिंग नामक विलेज में, ओके, द विलेज नेम इज आइपिंग, आइपिंग नामक विलेज में वहाँ पर लोकल इनन पर, आम सराय पर उसने वहाँ पर 2 कमरे जो किराए पर लिए, बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट द इनन, और सराय पर, आइपिंग नामक गांव के इनन पर, सराय पर, चौराहे पर उस अजनबी व्यक्ति के आगमन से, was in any case an unusual event. I repeat the line again. The arrival of a strange at the inn in winter, और सर्दी के मौसम में अजनबी के उस सराय पर आगमन से, in any case was an unusual event, किसी भी मामले में एक असाधारण सी घटना थी कि सर्दी के मौसम में यहाँ पर कौन अजनबी आया है जो अजीब प्रकार का दिखाई देता है। The same will be explained in next lines. A stranger of such uncommon appearance, a stranger of such uncommon appearance, एक ऐसा stranger, एक ऐसा अजनबी जो uncommon appearance वाला था, एक असाधारण जो उसका स्वरूप था। uncommon मतलब एक होता है commonly, like पैंट शर्ट हम लोग पहनते हैं, सब कुछ जो common मैन की तरह है, उसका common नहीं था, वो uncommon था। उसका appearance, उसका स्वरूप, उसकी बनावट, उसकी दिखावट बड़ी uncommon थी। Set all tongues wagging, set all tongues wagging, और इस तरह के अनकॉमन व्यक्ति वाले, इस तरह के अनकॉमन अपीयरेंस से जो है, set all tongues wagging, सभी लोग जो है बातें करने लगे। set all tongues wagging, tongues, okay, tongue means जीभे, tongues यहाँ पर है, जीभे यहाँ पर लोगों के tongue से, wagging means बातें करना, डिस्कशन करना। उसकी वजह से, उसके अनकॉमन अपीयरेंस की वजह से सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगे। गाँव में ऐसा होता है, विलेज में ऐसा होता है, कोई भी अननोन चीज़ या फिर यहाँ तक कि जो आपको इसके बारे में पता ना हो, तो गांव में ऐसा होता है। दैट्स द डिफरेंशिएशन इन विलेज एंड सिटी। सिटी में लोगों को परवाह नहीं है किसी चीज़ की कि कोई क्या कर रहा है, लोगों को मतलब नहीं है। द पीपल आर सो पॉश एंड सो सिविलाइज इन देयर नेचर, even the peoples of village are so civilized, but they love to know about each and everything, even about the personal matters of someone else. Okay, let's have. So the landlord's wife said all tongues of Mrs. Hall. Mrs. Hall, the landlord's wife. अब यहाँ पे हम बात करेंगे जिस
घर में उसने किराए पर मकान लिया है, उसकी स्टोरी, द नेक्स्ट करेक्टर, एंड अप टू नाउ वी डिस्कस अबाउट ओनली ग्रिफिन, एंड द नाउ नेक्स्ट करेक्टर इज मिसेस हॉल. ओके, मिसेस हॉल, मिसेस हॉल, मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो कि लैंडलॉर्ड्स की वाइफ थी, जो भूस्वामी था, जो मकान मालिक था, उसकी धर्मपत्नी थी, हम कह सकते हैं मकान मालकिन थी. ओके, मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो लैंड लेडी थी, मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो कि लैंडलॉर्ड्स की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने फ्रेंडली होने का, दोस्ताना होने के सारे एफर्ट्स लगाए, मतलब सारी कोशिश करिए कि इस आदमी के साथ, इस हमारे पेंगेज के साथ, जो इस हमारे इस पे जो रेंट पे जो कमरे लिए, इसके साथ फ्रेंडली हुआ जाए, उसने सारे एफर्ट्स लगाए. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की जो है टॉक करने की, बात करने की डिज़ायर नहीं थी, इच्छा नहीं थी. एंड टोल्ड हर, और बताया उसने उस लैंड लेडी को, लैंडलॉर्ड्स वाइफ को, मिसेस हॉल को बताया, क्या बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ द डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग, कि आइपिंग में आने का जो मेरा रीज़न है, इज़ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरी इच्छा है, मेरी डिज़ायर है सॉलिट्यूड की, एकांत में रहने की. मतलब मैं यहाँ पर एकांत में रहने की वजह से आया हूँ, एकांत में रहने की इच्छा से आया हूँ, मतलब मैं अकेला एकांतवास में सॉलिट्यूड में रहना चाहता हूँ. डोंट डिस्टर्ब मी. डोंट डिस्टर्ब मी मीन्स दैट आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. मैं अपने काम में डिस्टर्ब होना नहीं चाहता, मुझे अपने काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. ओके, बिसाइड्स इसके अलावा, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, बिसाइड्स और इसके साथ जो है, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट से जो है मेरा चेहरा अफेक्टेड हो गया है, मतलब वह अफेक्टेड हो गया, मतलब उस पर चोट लगी है, बैंडेज बांध रखी है, और इसके अलावा जो है मेरे चेहरे पर मेरे चेहरे पर जो है, रिपीट द लाइन अगेन, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, के अलावा जो एक्सीडेंट ने जो मेरे चेहरे को अफेक्ट किया है, मतलब चोट लगी है मुझे चेहरे पर, बता रहा है रीज़न, मैंने बैंडेज क्यों बांध रखी है. ओके, सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होते हुए उसका जो गेस्ट था, किसका गेस्ट, लैंड लेडी का, मिसेस हॉल का जो गेस्ट था, गेस्ट का मतलब पेइंग गेस्ट, मतलब जो किराएदार है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होते हुए इसका जो गेस्ट था वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट था, एक सन की वैज्ञानिक था. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने जो है एडवांस में पे कर दिया था, मतलब जो किराया है वो पहले उसने एडवांस में दे दिया था, तो वह सेटिस्फाइड हो गई थी इस बात को लेकर के, पैसे तो आ गए हैं भाई, क्या दिक्कत है. तो ये एक एक्सेंट्रिक वैज्ञानिक, एक सन की वैज्ञानिक एक्सेंट्रिक है. ओके, इन एडवांस मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, और इस बात को लेकर क्योंकि उसने पैसा एडवांस में दिया था, तो मिसेस हॉल ने जो है उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स को, उसकी अजीबोगरीब आदतों को जो है माफ़ करना शुरू किया था. एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को भी जो एक्सक्यूज़ करना, माफ़ करना शुरू किया था, मतलब उसे लगा था कि जब पैसा मिल गया तो मुझे इसके टेम्पर से, इसके बिहेवियर से क्या मतलब. ओके, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराया गया पैसा था, वह चुराया गया पैसा जो शॉपकीपर से चुराया था, उसे पीछे से अटैक करके जो पैसा ग्रिफिन ने चुराया था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, और लास्ट का मतलब होता है चलना, अधिक लंबे समय तक नहीं चला था. ही प्रिटेंडेड एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, और अब ये बात जो है ग्रिफिन को स्वीकार करनी थी, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास अब और रेडी कैश नहीं था, उसके पास अब तैयार मतलब पैसा नहीं था, उसके पास कैश मनी और नहीं थी, ये बात उसे एक्सेप्ट करनी थी. ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, एक्सेप्ट करने के बजाय क्या किया, उसने बहाना किया और कहा, हावेवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि वह किसी भी क्षण जो है चेक के आने का जो है आशा लगाए बैठा है, मतलब मेरा चेक आने वाला है, मेरा बैंक चेक आने वाला है. और प्रिटेंड किया, उसने बहाना बनाया था दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक, कि वह एक्सपेक्ट कर रहा था चेक आने की, अराइव एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, मतलब किसी भी क्षण, किसी मोमेंट जो है मेरा चेक जो है, बैंक चेक जो आने वाला है, ऐसा उसने प्रिटेंड किया, बहाना किया. बिकॉज द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ये स्टोलन मनी जो थी, चुराया गया पैसा था, अधिक लंबे समय चला नहीं था. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और कुछ समय बाद, इसके बाद जो है अ क्यूरियस एपिसोड अखड़ हुआ वहाँ पे, एक बड़ा विचित्र सी घटना वहाँ पर घटी. इसके बाद जो है शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, कुछ समय बाद जो है वहाँ पर एक विचित्र सी जो घटना घटी. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग,
वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, सुबह सुबह। अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन। क्लर्गी मैन का मतलब यहाँ पर कौन है? पादरी है। एंड हिज वाइफ यहाँ पे कौन है? उसकी पत्नी है। इट मीन्स दैट लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेडी, ओके, मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल, ओके। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एक वहाँ पे बड़ी अजीब सी घटना घटी, एक वहाँ पर एक बड़ी क्यूरियस एपिसोड वहाँ पर हुआ। मॉर्निंग में क्या क्या हुआ? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन। सुबह सुबह जो क्लर्गी मैन है, जो पादरी है और उसकी वाइफ है, मतलब मिस्टर मिसेस हॉल जो हैं, वो सुबह सुबह उठ गए। बाय नॉइसेस इन द स्टडी। बाय नॉइसेस इन द स्टडी का मतलब स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में नॉइसेस की वजह से, आवाज़ों की वजह से, अध्ययन कक्ष में जो आवाज़ें आ रही थी, स्टडी रूम में आवाज़ें आ रही थी, उनकी वजह से दोनों के दोनों उठ के जल्दी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, क्रीपिंग का मतलब होता है रैंग के जाना, धीरे धीरे जाना, और वह डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे वह रेंगते हुए धीरे धीरे आए, आराम से आ रहे हैं, पता नहीं कौन अंदर है। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसों के खनखने की आवाज़, पैसे की चिंक ऑफ मनी, चिंक ऑफ मनी लाइक कॉइन हम नीचे गिरते हैं ना तो वो आवाज़ करता है, उसे क्या चिंक कहते हैं, पैसों का खनखना, ओके। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसों के खनखने की आवाज़ सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क, जो कि पादरी के डेस्क से निकाले जा रहे थे, उन्होंने उसके पैसों की निकालने की खनखने की आवाज़ सुनी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, और बिना आवाज़ के, एंड विद द पॉकेट ग्रैप्स फर्मली इन हिज हैंड, विदाउट मेकिंग अ नॉइस एंड विद द पॉकेट ग्रैप्स फर्मली इन हिज हैंड, बिना आवाज़ के और अपने हाथ में पॉकेट का मतलब होता है एक्चुअली छड़ होती है ना, जैसे ओल्ड में रखते अपने पास छड़ी, जो कि मेटल की बनी होती है, धातु की से कहते हैं पॉकेट, धातु की बनी हुई छड़ को कहते हैं हम लोग पॉकेट। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना आवाज़ के, एंड विद पॉकेट ग्रैप्स फर्मली इन हिज हैंड, और अपने हाथ में पॉकेट को ग्रैप्स करके पकड़ करके, द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्गी मैन ने, पादरी ने, मिस्टर हॉल ने या फिर लैंडलॉर्ड ने जो है दरवाज़ा खोला, जोरों से दरवाज़ा खोला और क्या कहा? सरेंडर। क्या बोला? सरेंडर कर दो, जो भी अंदर है क्या कर दो? सरेंडर, ओके, आत्मसमर्पण कर दो, ओके। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट, और देन टू हिज अमेजमेंट, और अपने आश्चर्य के साथ उस इस बात का एहसास हुआ, मतलब आश्चर्य के साथ उस इस बात का रियलाइज हुआ, एहसास हुआ दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि वह जो कमरा जो था वो खाली था। आवाज़ तो थी अंदर, कमरा खाली था, रूम खाली था। देयर वाज नो वन, वहाँ पे कोई था ही नहीं, ओके। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने जो है डेस्क के अंदर देखा, डेस्क के अंदर नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, और पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी के वहाँ देखा। देयर वाज़न्ट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पर किसी का भी नामो निशान नहीं था, वहाँ पर किसी की प्रेजेंस का कोई साइन नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। Yet the desk had been opened, इसके बाद भी डेस्क को खोला गया था, जो स्टडी रूम का जो डेस्क था उसे खोला गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो हाउस कीपिंग मनी थी, घर को चलाने के जो पैसे रखे हुए थे, हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, वह गायब थी। आवाज़ भी थी, पैसे भी गायब है, बट नो वन वॉज देयर, वहाँ पे कोई था ही नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी affair, the clergy man kept saying for the rest of the day, और जो clergy man है, जो पादरी है, जो लैंडलॉर्ड है, पूरे दिन एक ही बात बोलता रहा, extraordinary affair, असाधारण मामला। the money was stolen but the man was not there, the noise was there but the nobody was there, आवाज़ वहाँ पर थी, पैसे चुराए गए थे लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, पूरे दिन केवल कहता रहा, असाधारण मामला। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture. लेकिन ये मामला उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था। ये घटना जो घटी थी, स्टोलन मनी की, पैसे के चुराने की और वहाँ पर डेस्क से खोले जाने की, वो बात इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, इतनी असाधारण नहीं थी। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन ये बात जो उतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उस सुबह थोड़ी देर बाद जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था। फर्नीचर का व्यवहार बदल गया। फर्नीचर का मतलब जो टेबल है, चेयर है, उनका बिहेवियर ही चेंज हो गया। अरे वो मूव करने लगे, वो हिलने लगे। Supposed to be there, if no one is in your room and the objects that are basically around in your room here and there, if they move without any cause and reason, without earthquake,
without any assistance of other supposed to be, then you will be surprised or you may be frightened. You may be frightened. ऐसा कुछ हुआ मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर ही चेंज हो गया. Okay, a little later that morning. Is that clear, students? It's all about today. The next we'll have in next class. Thank you and have a nice day.